Good morning, dear students. I am going to discuss next topic. That topic is cell organelles. Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. All of you know it well that every cell has a membrane, and why that membrane? That membrane is for separating it from external environment. प्रत्येक सेल के पास एक मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको बाहरी इन्वायरमेंट से उसको अलग करती है. लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड ए नॉट lot of chemical activity to support their complicated structure and function. To keep these activities of different kinds of separate from each other, these cells use membrane bound little structure for within themselves. What happened in this topics? Large complex cells, multicellular organism have lot of chemical एक्टिविटीज़. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और उनका जो फंक्शन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, वह जटिल होता है. और इसी वजह से जो है कि कीप दीज एक्टिविटी डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और ये अलग अलग होते हैं. दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स, और उसमें कुछ लिटिल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके द्वारा ये सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दैट distinguish them from prokaryotic cells. All of you know what is eukaryotic and what is prokaryotic. I am explaining it again. Here eukaryotic cells are those cells which have membrane bound organelles and also well developed nucleus. क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है और सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. वेयर एज प्रोकैरियोटिक सेल्स देयर इज़ नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. एंड देयर इज आल्सो लैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल, सॉरी. We have linked about nucleus in a previous section. Some important examples cell organelles which discuss now: endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastid and vacuoles. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि what is endoplasmic reticulum, what is Golgi apparatus, what is lysosomes, what is mitochondria, what is plastids and vacuoles. All these organelles are found in eukaryotic cell, and also their work we defined here. They important because they carry out some very chemical functions in cells. ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. कहाँ पे करते हैं? सेल के अंदर. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स. क्या होता है? ये लार्ज नेटवर्क होता है. नेटवर्क मीन्स जो कि किसी भी चीज़ को, किसी मैसेज को पहुंचाता है. एंड सीट्स होती हैं. इट लुक्स लॉन्ग ट्यूबल्स. कैसा दिखाई देता है? ट्यूब की तरह से दिखता है. ऑब्लॉन्ग बैग्स होते हैं. एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऐसा होता है बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह से होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑल ऑफ यू नो इट वेल. Rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. First I will talk about rough endoplasmic reticulum. What is rough endoplasmic reticulum? The reticulum which have ribosomes is known as rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, ribosomes attached to its surface. All of you know it that rough endoplasmic reticulum have ribosomes. What is the work of ribosomes? All of you know that work of ribosomes is protein synthesis. So rough endoplasmic reticulum help in protein synthesis. Now we come on the smooth endoplasmic reticulum. Helps in the smooth endoplasmic reticulum manufacture fat molecules or lipids, important for cell functions.
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क जो होता है वो फैट्स या लिपिड्स को सिंथेसाइज करने का होता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल्स मेम्ब्रेन, और ये किस में मदद करते हैं? सेल्स मेम्ब्रेन को बनाने में। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और जो ये भी वर्क करता है जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, फैट्स का सिंथेसिस हुआ या लिपिड्स का सिंथेसिस हुआ, इसको किस नाम से जानते हैं? बायोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स फंक्शंस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स हैं जो कि और लिपिड्स हैं जो कि किसका काम करते हैं? एंजाइम्स का। आल्दो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स इज ऑलवेज फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्मेशन करते हैं? नेटवर्क सिस्टम का। नाउ वी डिस्कस हियर, नाउ वी लुक दैट फिगर हियर एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स, फर्स्ट part of animal cells here given Golgi apparatus, plasma membrane, then centrioles, lysosomes, ribosomes, mitochondria, rough endoplasmic reticulum, cytoplasm, nuclear envelope and smooth endoplasmic reticulum. These are all parts of the found in animal cells. Thus the function of endoplasmic reticulum is to serve as channels for the transport of molecules. वर्क क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स का बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, अलग अलग रीजन्स में किसके? साइटोप्लाज्म के। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस, ये सरफेस को भी प्रोवाइड करता है। नाउ वी कम ऑन दिस फिगर, दिस इज द फिगर ऑफ प्लांट सेल। हियर plant cells for the biochemical activities of the cell is the liver cells of the group of mammals called vertebrates, और biosynthesis जो भी लीवर का अगर हम देखते हैं तो ये वर्टिब्रेट्स में वर्क करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेस ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। एक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क ये है कि ये डिटॉक्सिफाइंग करता है। डिटॉक्सिफाइंग का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स जो भी होता है, जो पॉइजन होता है सेल्स के अंदर, उसको रिमूव करता है। नाउ वी कम अंडर दिस फिगर प्लांट सेल। हियर आल्सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। There is what is the difference between plant and animal cell? All of you clear it. It is your homework. Golgi apparatus. Now we come Golgi apparatus. What is Golgi apparatus? The Golgi apparatus first described by Camillo Golgi. सबसे पहले Golgi apparatus को जो है Camillo Golgi ने डिफाइन किया था। अगर सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेस्किल्स होता है और पैरेलल एक दूसरे के अटैच होते हैं सेक्स के सिस्टर्नी के फॉर्म में। द मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विथ मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। गोल्गी apparatus जुड़ा हुआ होता है, कनेक्ट होता है। और ये कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक पैक्ड एंड इट डिस्चार्ज टू वेरियस टारगेट इनसाइड आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू गोल्गी apparatus। और जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मटेरियल्स को सिंथेसाइज करता है वो एंड गोल्गी apparatus के अंदर जो है कि डिस्पैच हो जाते हैं, यानी यहाँ रखे जाते हैं। इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेस्किल्स, और ये वेस्किल्स के फॉर्म में जो भी मटेरियल्स होता है इसमें उसको पैक करता है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में भी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्गी apparatus, और कुछ में कॉम्प्लेक्स शुगर से जो है कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन होता है किससे? सिंपल शुगर से। गोल्गी apparatus आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। गोल्गी apparatus जो होता है वो किस में मदद करता है? लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में। Here about Camillo Golgi is given, all of you read it. Now we come on the lysosomes. What is lysosomes? Lysosomes are kind of waste disposal. Lysosomes जो होता है वो डिस्पोजल करता है। वेस्ट डिस्पोजल का मतलब जो भी मटेरियल उसके अंदर होता है उसको जो है कि लाइसोसोम्स में वो होता है।
Now we come on the lysosomes. What is lysosomes? Lysosomes is a kind of waste disposal system of cell. Lysosomes help to keep as well as one out the cell organelles. ये साफ सुथरा करते हैं सेल ऑर्गेनल्स को. फॉरेन मटेरियल्स जो भी इंटर करता है सेल के अंदर, बैक्टीरिया होता है या फूड होता है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है सेल के लिए, उसको जो है कि ये डिस्पैच करता है, बाहर निकालता है या डाइजेस्ट कर जाता है. लाइसोसोम्स आर एबल टू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ये वर्क कैसे करता है? सपोज करिए हम कह रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल को जो है कि ये डाइजेस्ट करता है, तो लाइसोसोम्स हैव डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का वर्क जो होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करता है ड्यूरिंग डिस्ट्रप्शन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म. फॉर एग्जांपल व्हेन सेल गेट डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाती है तो इसका वर्क क्या होता है लाइसोसोम्स का? लाइसोसोम्स जो है उस समय अगर डैमेज हो जाता है, कोई सेल्स डैमेज हो जाती है, लाइसोसोम्स में ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और उस समय जो है कि लाइसोसोम्स ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है और अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है. देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. ऑल ऑफ यू नो इट. आत्मघाती थैली के नाम से लाइसोसोम्स को जाना जाता है. स्ट्रक्चर लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इसलिए डाइजेस्ट कर लेता है ये अपने सेल को. देयर एंजाइम्स आर मेड ऑफ बाई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका एंजाइम जो होता है वो किसके द्वारा बनता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा. Now we come on the topic mitochondria. All of you know that mitochondria is the powerhouse of the cell. It synthesizes ATP, and full form of ATP is the adenosine triphosphate. Uh, ATP synthesized in mitochondria. Mitochondria have two membrane covering instead of just one. सारे में जो है एक कवरिंग होता था, लेकिन mitochondria have two membrane covering. The outer membrane is very porous while the inner membrane deep folded. आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, मुड़ी हुई होती है अंदर के तरफ. दिस फोल्ड क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन. और यही जो मेम्ब्रेन होता है वो एटीपी क्रिएट करता है, एटीपी को केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म करता है. माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. ये अपने आप में एक अलग है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स वो होता है. देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक अप देयर ओन प्रोटीन्स. इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बनाता है. नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिड्स. Plastids are represent only in plant cells. All of you know plastids are found in only plant. There are two types of plastids. Here two types are plastids are mentioned, chromoplast and leucoplast. कलरलेस प्लास्टिड जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है. कलर्ड प्लास्टिड जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है. प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल. ऑल ऑफ यू नो इट दैट क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट फाउंड इन लीव्स, and also plastids containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast. chloroplast के अंदर chlorophyll होता है. chloroplast are important for photosynthesis in plants. chloroplast जो है photosynthesis के लिए necessary होता है. chloro also contain various yellow orange pigment in addition to chlorophyll. chlorophyll के अलावा इसमें और भी पिगमेंट होते हैं जिसको येलो पिगमेंट होता है, ऑरेंज पिगमेंट होता है. ल्यूकोप्लास्ट आर द प्राइमरी ऑर्गेनल इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च आल्स एंड प्रोटीन ग्रेनुल्स आर स्टोर्ड. और भी जो मटेरियल्स होते हैं वो इसमें स्टोर्स होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में. द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड्स कंसिस्ट न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड द स्टोमा. और इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम लोग स्टोमा के नाम से जानते हैं. प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. बाहर का स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के होता है. प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है और ये भी जो है राइबोसोम्स होता है, इसलिए भी अपने प्रोटीन का निर्माण स्वयं करता है. नाउ कम वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स. वैक्यूल्स क्या होते हैं? सॉलिड और लिक्विड को स्टोर करते हैं. वैक्यूल्स स्मॉल साइज़ के होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में जो है ये लार्ज साइज़ के होते हैं. और जितना प्लांट का पूरा पार्ट्स का जो है 50 to 90% जो वॉल्यूम जो होता है, जो पार्ट होता है वो
50 to 90% जो है वैक्यूल से ही होता है प्लांट में, because plant have large vacuoles. Plant cells vacuoles are full cell shape and provide turgidity and rigidity to the cell. अब vacuoles किस लिए होता है? क्योंकि वो कठोरता प्रदान करता है और सेल को फुलाए रखता है. many substances uh, many substances are important in the life of the plant cell stored in vacuoles. बहुत सारे सबस्टेंस जो होते हैं वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं. दीज इंक्लूड्स अमीनो एसिड, शुगर्स, वेरियस organic and some proteins. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा. फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम्स. अमीबा में जो है फूड वैक्यूल्स जो है कि क्या रखता है? फूड को रखता है और फूड अमीबा इसको कंज्यूम करता है. सम यूनिसेलुलर स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल. और कुछ ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स पाया जाता है और ये वाटर को जो है एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है और वेस्ट को बाहर निकालता है. इसके बारे में जो है कि हम वैक्यूल्स के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया. नाउ ईयर क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर. कैन यू नेम 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडी कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. If the organization of the cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर सेल के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? ऑल ऑफ यू राइट अबाउट इट. देन वाई लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स. क्यों लाइसोसोम जो है सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है? ये जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है उसके अंदर इस सारे क्वेश्चंस का आंसर है. ऑल ऑफ यू डू इट. वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल? ऑल ऑफ यू आल्सो नो इट वेरी वेल. Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी सेल्स हैं वो अपने स्ट्रक्चर के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है किसी वर्क को जो है परफॉर्म करते हैं. द सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके खुद के ऑर्गेनल्स होते हैं, इसलिए जो है सेल जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. हेल्प सेल परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल फॉर फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स. इस तरीके से ये हेल्प करता है फंक्शनिंग में. रेस्पिरेशन सांस लेने में मदद करता है, न्यूट्रिशन लेने में मदद करता है और वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने में मदद करता है और न्यू प्रोटीन्स को बनाता है. द सेल इज़ द फंडामेंटल. इस वजह से हम कह सकते हैं कि द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट आल्सो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और इस तरीके से ये बेसिक फंक्शनल यूनिट लाइफ की है, जीवन चक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है सेल, कोशिका. एंड टुमारो आई सेंड यू क्वेश्चन आंसर. all of you make notes of these topics. Try to make notes of these topics. I will explain. Sorry, I am explaining here.